Hello, students. How are you all? I hope you all are fine and staying at home. So, children, I'm back with your next lecture, lecture number 7 of chapter 2, Maths, chapter Polynomials. Today, in this lecture, I'm going to cover question 6, 7, 8, 9, 10, and questions 15 and 16 of exercise 2.5. Before moving further, let's quickly have a recap of what we did yesterday. Yesterday, I introduced you to one new identity, and today I'm going to introduce you with two more new identities, cubic identities. Let's see. So, the identities that we are going to do today are number 6 and number 7 of this chapter, x plus y whole cube and x minus y whole cube. Till now you have done x plus y whole square and x minus y whole square. Now this is x plus y cube and x minus y cube. So when we will expand this x plus y whole cube, the resultant expanded form will be x cube plus y cube plus 3xy multiplied by x plus y. Similarly, in x minus y whole cube, the expanded form is x cube minus y cube minus 3xy, and inside the bracket x minus y. So as you can see, if here is minus, तो सारे sign minus हो जाएंगे. Okay, so all of you please learn these two new identities, and remember children, if you are given question in this form, you have to expand it, and if you are given in expanded form, you have to make it short. So let's begin with question number 6. Write the following cubes in expanded form. So you are given short form and you have to write in expanded form. सबसे पहले हमें देखने से ही पता चल रहा है, this is in the form a plus b whole cube, which is equal to, either you write x plus y whole cube or a plus b whole cube, one and the same thing. A cube plus b cube plus 3ab inside the bracket a plus b. Now what is here? A 2x and what is your b 1. So just substitute the value. यहाँ a की जगह 2x का whole cube, b की जगह 1 का whole cube plus 3 into 2x into 1 and inside the bracket 2x plus 1. Now solve further. Cube of 2 is 8, x cube plus 1, cube of 1 is 1, then 3 2s are 6x and inside the bracket 2x plus 1. Now this 6 will be multiplied inside when you will open the bracket. So 8x cube plus 1 plus 12x square plus 6x. Now I have written it in the standard form. You know the standard form now? That means degree wise, highest to lowest. So 8x cube plus 12x square plus 6x and plus 1. So this is the final solution. Next, third part of this question is, just a minute. Third part of this question is 3 by 2x plus 1 whole cube. So here again it is in the form x plus y whole cube, and here our x is 3 by 2x and y is 1. So just substitute the values here. We'll write 3 by 2x cube plus 1 cube plus 3 into 3 by 2x into 1 and inside the bracket 3 by 2x plus 1. Just put the values. Now solve it. Cube of 3 is 3 3s are 9, 9 3s are 27. This is 27x cube. Cube of 2 is 8 plus cube of 1 is 1. Then this is 3 3s are 9x, niche denominator 2. Inside the bracket 3 by 2x plus 1. Now when this bracket will open, we will multiply 9x by 2 with 3 by 2x and also with 1. So we will get 27x cube by 8 plus 1 plus 27x square by 4 plus 9x by 2. So I have written it degree wise standard form. So this is your final solution. Next is x minus 2 by 3y whole cube.
Now this is in the form x minus y whole cube, which is equal to x cube minus y cube minus 3xy inside the bracket x minus y. Here your x is simple x and y is 2 by 3 y. So just substitute the values. x की जगह x ही रखेंगे, y की जगह 2 by 3 y रख देंगे. Minus 3 into x into 2 by 3 y and inside the bracket x minus 2 by 3 y. x का cube is x cube. क्यूब ऑफ 2 8, क्यूब ऑफ 3 27, y क्यूब माइनस ये 3 से 3 कैंसिल हो गया. व्हाट इज लेफ्ट 2xy एंड ब्रैकेट में x माइनस 2 by 3y. अब ये मल्टीप्लिकेशन में है तो दोनों के साथ ये मल्टीप्लाई होगा. सो x क्यूब माइनस 8y क्यूब बाई 27 माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4 by 3 xy स्क्वायर हो जाएगा. सो दिस इज योर फाइनल सोल्यूशन. So this question has one more part, that is 2a minus 3b whole square whole cube, that you will do yourself. x minus y whole cube में आप इसे रखना और expand करना. यहाँ पर आपका x जो है वो 2a है और y जो है वो आपका 3b है. Okay, so do it yourself. Next question number 7. Evaluate the following using suitable identities. So mind it, you have to use the identities. आपको identities से solve करना है, ये direct नहीं करना है, 99 का क्यूब नहीं निकालना है. So 99 कैसे लिख सकते हैं आप? 100 minus 1 का होल क्यूब. अब ये x minus y का होल क्यूब में फॉर्म में है. यहाँ पर आपका x क्या है? 100 और y क्या है? 1. इस आइडेंटिटी में हम ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे. सो 100 क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 एंड ब्रैकेट में 100 माइनस 1. इन्हें सॉल्व करिए. ठीक है, ये आ जाएगा. इसको फर्दर सॉल्व करिए. यू विल गेट this expression and just then solve this. You will get this one. This is your answer. Now 102 cube. Now how you can write 102? 100 plus 2. Now this is in the form x plus y whole cube. ये आपका आइडेंटिटी है. इसमें आपका x जो है 100 है और y क्या है 2. तो यहाँ पर x की जगह आप 100 रखेंगे और y की जगह पे 2 रखेंगे. जहाँ जहाँ x है वहाँ 100 और जहाँ जहाँ y है वहाँ पर 2 रखिए. एंड देन पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व. Now one more part of this question is there, which is 998 cube. So how you can write it? 1000 minus 2 है ना. लिख सकते हैं ना हम 998 को 1000 minus 2. So 1000 minus 2 cube. So this is in the form x minus y whole cube. तो आप इसमें expand करिए. आपका x इधर 1000 है और y आपका 2 है. तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए और आंसर फाइंड आउट करिए. ओके चिल्ड्रन, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब आपको अगर मेरी बात याद हो तो मैंने कहा था कि अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में गिवन है तो एक्सपैंडेड में लिखना है, एक्सपैंडेड में गिवन है तो शॉर्ट में लिखना है. यहाँ पे कुछ ऐसा ही है. यहाँ पे आपको एक्सपैंडेड फॉर्म गिवन है. अब आप पूछेंगे कैसे? देखिए सारे साइन प्लस के हैं, इसका मतलब ये x प्लस वाई होल क्यूब है. तो हमारा x प्लस वाई होल क्यूब आइडेंटिटी क्या था? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, यही था ना हमारा आइडेंटिटी, राइट. अब अगर हम इसे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा? x क्यूब, यहाँ लिख लेती मैं, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस x इंटू एक्स हो जाएगा तो 3x स्क्वेयर वाई प्लस यहाँ पर y इंटू वाई हो जाएगा तो 3x वाई स्क्वेयर. अब अगर आप देखो तो ये इसी फॉर्म में है. x क्यूब वाई क्यूब 3x स्क्वेयर वाई, एक बार a स्क्वेयर भी है और दूसरी बार a b स्क्वेयर है. तो आप रिलेट कर सकते हैं कि ये कौन सी आइडेंटिटी है? ये है हमारी x प्लस वाई का होल क्यूब. क्योंकि ये एक्सपैंडेड फॉर्म में गिवन है तो आपको किस फॉर्म में लिखनी है? शॉर्ट फॉर्म में लिखनी है. तो अब आपको उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? x और y. ठीक है, तो अब हम इसे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखते हैं. हम कैसे लिखेंगे? हम 8 को कैसे लिख सकते हैं? 8 किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब होता है. सो 8 विल बी रिटन एज 2 एंड 8a क्यूब विल बी रिटन एज 2a क्यूब. ओके, प्लस b क्यूब कैन बी रिटन एज b का होल क्यूब प्लस नेक्स्ट टर्म आपकी क्या है? 3x स्क्वेयर वाई, राइट. ये हमने देखी ना, यहाँ पे 3x स्क्वेयर वाई है. सो 3 इंटू एक्स, फर्स्ट टर्म हमारी 2a थी उसका स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म हमारी b. चेक कर लो हमारा क्या आता है, इसे सॉल्व करके यही आएगा. ओके, देन फोर्थ टर्म इज
3xy², सो 3 इंटू एक्स हमारा 2a और y क्या हमारा इधर b²। तो इधर से हमें पता चल रहा है हमारा x क्या है 2a और y क्या है b, और कौन सी आइडेंटिटी है ये x प्लस वाई होल क्यूब। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2a प्लस b का होल क्यूब, और बिकॉज इट इज़ होल क्यूब सो वी कैन राइट इट 3 टाइम्स 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b। गॉट इट चिल्ड्रेन? अगर आपको कभी भी एग्जाम में ऐसे 4 टर्म्स दिए हैं, एक a क्यूब प्लस b क्यूब, एक बार इसका स्क्वायर है दूसरी बार उसका स्क्वायर है, तो समझ जाना, और साइन अगर तीनों साइन प्लस के हैं तो वो x प्लस वाई होल क्यूब है। अगर यहाँ 3 जो साइन है वो माइनस के होंगे तो वो x माइनस वाई होल क्यूब है। उसका भी हम एक प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट इज 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a² b प्लस 108ab², राइट। नाउ एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे 2 टर्म्स नेगेटिव हो गए, इसका मतलब ये a प्लस बी होल क्यूब तो है नहीं, आई मीन x प्लस वाई होल क्यूब तो नहीं है, तो ये क्या है x माइनस वाई होल क्यूब। तो x माइनस वाई होल क्यूब क्या होता है, x माइनस वाई लिख लो या a माइनस बी लिख लो, वन एंड द सेम थिंग। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस ये a इंटू a 3a² और माइनस माइनस ये लास्ट वाला टर्म प्लस हो जाएगा 3ab²। ओके ये इसी फॉर्म में देखो माइनस माइनस प्लस a क्यूब b क्यूब a² b एंड ab²। तो ये बिल्कुल प्रोमिनेंटली हमें पता चल रहा है कि ये क्या है a माइनस b होल क्यूब का एक्सपैंडेड फॉर्म। तो आपको किस फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में। तो आपको क्या निकालना है पहले a और b। नाउ 64 किसका क्यूब होता है 4 का, तो यू कैन राइट इट एज 4a का होल क्यूब माइनस 27 किसका क्यूब होता है 3 का, सो 3b होल क्यूब माइनस यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू a क्या है हमारा 4a एंड b क्या है 3b। पुट द वैल्यूज, यहाँ से ही हमको पता चल गया हमारा a क्या है 4a एंड b क्या है 3b। सो a माइनस b होल क्यूब यू कैन राइट एज 4a माइनस 3b होल क्यूब और 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b। नेक्स्ट 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। यहाँ पर पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं, क्योंकि 27 जो है वो 3 का क्यूब है और 216 जो है वो 6 का क्यूब है। तो यहाँ से ये तो पता चला है दोनों क्यूबिक टर्म्स हैं और परफेक्ट क्यूब्स हैं। प्लस हमें ये भी पता चल गया यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर एक नंबर ही है, कांस्टेंट है, राइट ठीक है। इसीलिए हमारा यहाँ पे p² है और दूसरी बार p है, यहाँ पर कोई और वेरिएबल नहीं है बिकॉज यहाँ पे इस टर्म के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, राइट। तो लेट्स डू इट। ये इसी फॉर्म में है माइनस माइनस प्लस, तो हमें पता चल रहा है दिस इज a माइनस b होल क्यूब। तो 27p क्यूब को कैसे लिख सकते हो आप 3p का होल क्यूब। 1/216 को कैसे लिख सकते हो 1/6 का होल क्यूब। यहाँ से ही हमको पता चल गया कि हमारा a क्या है 3p और b क्या है 1/6। सो a माइनस b का होल क्यूब इज 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब और 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6। इस क्वेश्चन के 2 और पार्ट्स थे जो मैंने छोड़ दिए हैं 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a² b प्लस 6ab², 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a²। ये भी दोनों आपके x माइनस वाई क्यूब हैं दोनों ही, ठीक है। 8a क्यूब को आप कैसे लिख सकते हो 2a का होल क्यूब और b क्यूब को माइनस b का होल क्यूब। तो यहाँ से पता चल गया आपका ये x है और ये आपका y है। सिमिलरली 27 को आप 3 का क्यूब लिख सकते हो और इसे आप 5a का क्यूब लिख सकते हो। तो यहाँ से भी पता चल रहा है आपका ये आपका x है और ये आपका y है। तो बहुत ईजी कर दिया, मैंने आपको पूरा हिंट दे दिया, आप इन दोनों पार्ट्स अपने आप करिए, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, वेरीफाई x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू x² माइनस xy प्लस y²। सी ये वेरीफाई का क्वेश्चन ज़रूर है लेकिन दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो कई बार आपके फैक्टराइजेशन में बहुत काम आएगी, तो इसे भी आप याद रखें तो अच्छा है। अब हमें ये क्यूब से देख के पता चल रहा है कि ये सब प्लस का है तो ये x प्लस वाई क्यूब से रिलेटेड है, तो इसी को ही हम लेके चलते हैं वेरीफाई करने के लिए। तो x प्लस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला हमें पता ही है, आइडेंटिटी x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, राइट। अब मुझे क्या निकालना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना है।
तो मैं क्या करूँगी, ये वाला जो मेरा पूरा टर्म है इसको मैं इक्वल के उधर ले जाती हूँ। ओके, अब यहाँ ये प्लस का है, इक्वल के उधर जाके माइनस का हो जाएगा, राइट? याद है ना? अब मैं शीट चेंज कर रही हूँ। ओके, सो मैं 3xy x प्लस वाई को अदर साइड लेके आई, तो क्या हुआ, x क्यूब प्लस वाई क्यूब हमें निकालना था, राइट? तो वहाँ दूसरी तरफ क्या था हमारा, x प्लस वाई का होल क्यूब, माइनस में आ गया वो 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अब x प्लस वाई इधर भी है, x प्लस वाई इधर भी है, सो मैंने x प्लस वाई को कॉमन निकाल लिया, तो इधर तो यही रहेगा लेफ्ट हैंड साइड x क्यूब प्लस वाई क्यूब, क्योंकि ये तो हमें प्रूफ करना है। मैंने x प्लस वाई कॉमन निकाल लिया, यहाँ क्या बचा, यहाँ 3x प्लस वाई थे, उनमें से एक बाहर आ गया तो 2 बच गए, x प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये x प्लस वाई बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा 3xy। ठीक है, अब ये x प्लस वाई होल स्क्वायर का मुझे पता है क्या होता है आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो मैंने x क्यूब प्लस वाई क्यूब ऐसे ही लिखा, ये x प्लस वाई भी ऐसे ही लिखा, और इसको मैंने खोल दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पहले से माइनस 3xy था। अब ये और ये लाइक टर्म्स हो गए, सॉल्व हो जाएंगे। +2 और -3 क्या होता है, -1, तो क्या बचा, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना था। ओके, अगर आपको ये समझ आ गया तो अगला वाला आप खुद करके देखिए। दूसरा है हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये अगेन ये है तो हमारा ये ऑब्वियसली एक्स माइनस वाई होल क्यूब से रिलेटेड है, तो हमने पहले वही वाली आइडेंटिटी लिख ली। इस आइडेंटिटी को लिखने के बाद हमें ये प्रूफ करना है, तो इसको इधर ही रखिए। बाकी ये जो -3xy इंटू एक्स माइनस वाई टर्म है इसको मैं इक्वल के उधर ले जाती हूँ, क्योंकि यहाँ ये माइनस में तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। देखिए मैंने क्या किया, ये वाला इधर ही रखा, ये वाली टर्म उधर ले गई, यहाँ माइनस में थी तो उधर आके प्लस में हो गई, एक्स माइनस वाई होल क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अब एक्स माइनस वाई को मैंने बाहर निकाल लिया क्योंकि ये दोनों टर्म्स में है, एक्स माइनस वाई बाहर आ गया, यहाँ 3 थे यहाँ 2 बच गए, ये बाहर ही आ गया तो यहाँ सिर्फ 3xy बचा। अब इस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर को मैंने आइडेंटिटी लगा के खोल दिया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब अंदर ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए, -2 + 3 क्या होता है +1। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूफ। ओके, इट्स नॉट टफ, जस्ट डू इट वंस और ट्वाइस, आपको पता चल जाएगा कैसे करना है, और प्लस आपको ये याद भी हो जाएंगी, बिकॉज एनी हाउ आपको ये याद रखनी है, बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। अब मुझे दिख रहा है मेरा 27 जो है वो परफेक्ट क्यूब है 3 का, और 125 भी परफेक्ट क्यूब है 5 का, ठीक है। और y क्यूब को हम y लिख सकते हैं, इसका होल क्यूब, और ये मैं z का होल क्यूब लिख सकती हूँ। तो ये कुछ अगर आइडेंटिटी से सॉल्व हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 9 में यही आइडेंटिटी वेरीफाई की है। सी, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। यही आइडेंटिटी मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ, राइट। कैसे, मैं इस 27y क्यूब को लिख सकती हूँ 3y का होल क्यूब, 125z क्यूब को लिख सकती हूँ 5z का होल क्यूब, राइट। अब ये मेरा किस फॉर्म में हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये मैंने अभी वेरीफाई किया, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो अब क्या होगा, इसको एक्सपैंड कर दो, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 3y रख दो, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे 5z रख दो। x क्या हो गया आपका 3y, और y क्या होगा आपका यहाँ पे 5z। सो ये हो गया 3y प्लस 5z, 3y का स्क्वायर प्लस 5z का स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z। सो 3y प्लस 5z एज इट इज़ आ गया, ये हो गया 9y स्क्वायर, ये हो गया 25z स्क्वायर माइनस 3 5 15y z। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट इज 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। ये भी मुझे देखने से पता चल रहा है 64m क्यूब यानी ये 4m का होल क्यूब है, 343 जो होता है 7n का होल क्यूब है, 343 7 का होता है, n क्यूब n का होल क्यूब है, तो ये बीच में माइनस साइन है, तो ये हो गया x क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये भी मैंने वेरीफाई किया था क्वेश्चन नंबर 9 में। सी,
x cube minus y cube is equal to x minus y into x square plus xy plus y square. So this is I'm going to use this identity here. यहाँ पर मेरा x क्या है 4m और y क्या है 7n, तो ये वैल्यूज पुट कर दो. यहाँ पे हो गया 4m माइनस 7n, 4m स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n प्लस 7n का होल स्क्वायर. So 4m minus 7n as it is, this is 16m square, 7 4s are 28mn plus 7n square is 49n square. So this is your solution. Okay children, so now we have finished till question number 10. 10 के बाद 11, 12, 13, 14 में एक और आइडेंटिटी है जो यूज़ हो रही है, लेकिन अब ऑलरेडी मैं आपको आज क्यूबिक आइडेंटिटीज़ 4 बता दी, 2 शुरू में बताई थी, 2 मैंने क्वेश्चन नंबर 9 में बताई हैं. तो मैं आज आपके लिए और नहीं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर 8 में करूँगी. तो इसीलिए मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस ले लिए जिनमें अभी जो एग्जिस्टिंग आइडेंटिटीज़ हैं उनसे हम सॉल्व कर लें. सो क्वेश्चन नंबर 15, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन. आपको एरिया दिया है, ठीक है, आपको लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है रेक्टेंगल का. सो यू नो दैट रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो बेसिकली आपको ये जो आपका एक्सप्रेशन है इसे 2 फैक्टर्स में करना है, ठीक है. आपको इसे ब्रेक करना है 2 फैक्टर्स में. जो वो 2 फैक्टर्स होंगे उनमें से एक लेंथ हो जाएगी आपकी और एक ब्रेड्थ हो जाएगी. और हमें ये दिख भी रहा है कि ये क्वाड्रेटिक है, इसकी डिग्री 2 है, ये क्वाड्रेटिक है. तो क्वाड्रेटिक को हम 2 फैक्टर्स में पहले भी कर चुके हैं. हमने कैसे किया था, याद है कुछ, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म. तो हम यहाँ पे वही यूज़ करेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो कैसे होगा, सी 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12, ठीक है, ये हमको गिवन है. तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हमारा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ यहाँ पे जो x का होता है दैट इज a. तो a हमारा 35 है. c जो कांस्टेंट टर्म है वो यहाँ पे 12 है. तो हम पहले ac निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ a एंड c, दैट इज 420. 35 एंड 12 का प्रोडक्ट क्या है 420. अब मैं 420 के फैक्टर्स कर लेती हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया मैंने. तो मुझे मिले हैं 2, 2, 3, 5 एंड 7. अब मुझे ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए, मतलब ऐसे 2 फैक्टर्स चाहिए जिनका सम तो 28 हो, सॉरी सम तो 13 हो और प्रोडक्ट 420 हो. मतलब सम तो 13 होना चाहिए और प्रोडक्ट आपका 420 होना चाहिए. यहाँ से मुझे 2 लेने हैं, तो लेके देखते हैं. चलिए, 2 2s 4, 4 3s 12 एंड 5 7s 35. तो 35 और 12 को देखते हैं, मल्टीप्लाई करने से तो 420 आ जाएगा, लेकिन अगर मैं माइनस करती हूँ तो आता है 23 और मुझे क्या चाहिए 13. ये तो नहीं बात बनेगी. फिर क्या करें, चलो मैंने यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बनाया. मैंने क्या किया, 2, 2 और 7 ले लिया साथ में. तो 2 2s 4, 4 7s 28, बचा 3 5, तो 3 5s 15. ये 2 कॉम्बिनेशन ले लिया. अब 28 में से 15 में माइनस करती हूँ तो 13 आ गया, मल्टीप्लाई करने से 420 आ गया. तो यानी मेरे 2 फैक्टर्स क्या हो गए, 28 एंड 15. अब मैं अपनी मिडिल टर्म्स 13y को स्प्लिट कर लेती हूँ, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो मेरा जो बड़ा वाला फैक्टर है 28 वो पॉजिटिव होगा और जो छोटा वाला 15 है वो नेगेटिव होगा. तो 13y क्या हो गया, 28y माइनस 15y. स्प्लिट कर, अब एज इट इज़ लिख दो, 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12. ये दोनों 7 की टेबल में आते हैं, y भी कॉमन है, 7y बाहर निकाला, अंदर क्या बचा 5y प्लस 4, ठीक है. यहाँ पर 3 कॉमन है, 3 बाहर निकाल लिया, अंदर बचा 5y प्लस 4, 5y प्लस 4 कॉमन निकाल लिया, क्या बचा 7y माइनस 3. अब ये 2 फैक्टर्स की फॉर्म में आ गया. तो एक फैक्टर आपका लेंथ हो गया, दूसरा आपका ब्रेड्थ हो गया. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. ओके, सी एक और क्वेश्चन था इसका, वो मैंने छोड़ दिया है. 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12, ये आप खुद करेंगे, सेम करेंगे. ये आपका a है, ये आपका c है. सबसे पहले प्रोडक्ट निकालना ac, फिर आप इस ac के क्या करोगे, फैक्टर्स. फिर उन फैक्टर्स में से आप चूज करोगे कि आपका सम तो -35 आना चाहिए और प्रोडक्ट जो है वो ac के इक्वल आना चाहिए, a इंटू सी के इक्वल आना चाहिए, ठीक है. तो
तो आपके लास्ट में दो फैक्टर्स आ जाएंगे, जो आपका एक लेंथ बनेगा और एक ब्रेड्थ बनेगा, तो आप ये खुद करेंगे, राइट। 16th क्वेश्चन, what are the possible expressions for the dimensions of the cuboids whose volumes are given below? अब वॉल्यूम की बात आ गई ना। वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, राइट। तो हमें इसमें कितने फैक्टर्स चाहिए? 3 फैक्टर्स चाहिए। अभी एरिया में तो 2 ही चाहिए थे, अब हमें 3 चाहिए। हमें एक्सप्रेशन दिया ये 3x² माइनस 12x, ये क्वाड्रेटिक तो है बिकॉज इसमें डिग्री 2 है, लेकिन यहाँ पे थर्ड टर्म ही नहीं है, तो हम यहाँ पे स्प्लिटिंग तो नहीं कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे 3x कॉमन है, तो कॉमन निकालिए 3x। अगर मैंने 3x कॉमन निकाला तो यहाँ पे एक x बचा, माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3 4, x तो बाहर आ ही चुका है, तो ये तो तब भी मेरे पास 3 फैक्टर्स हो गए, एक 3, एक x और एक हमारा x माइनस 4। तो एक हमारा L बन गया, एक ब्रेड्थ बन गया और एक हाइट बन गया। ओके चिल्ड्रन, सेकेंड पार्ट करेंगे अब इसका। 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k, इसके अगेन मुझे 3 फैक्टर्स चाहिए जो मेरे एक लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट बनेंगे। तो देखो पहले यहाँ पे क्या कॉमन निकल सकता है, ये तीनों 4 के टेबल में आते थे, तो 4 हो गया कॉमन, और एक k सब में है तो k कॉमन निकल गया। क्या बचा? 3y² प्लस 2y माइनस 5। अब ये मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया, तो मैं इसको अलग से फैक्टराइज करके 2 फैक्टर्स बना लेती हूँ। तो एक तो मेरा ये हो जाएगा और 2 इससे मिल जाएंगे, तो टोटल कितने हो गए? 3। सो 3y² प्लस 2y माइनस 5, ये हमारा a है, ये हमारा c है, तो प्रोडक्ट निकाल लो। 3 5 15। अब 15 के मुझे फैक्टर्स देखने सच दैट सम तो 2 आना चाहिए और प्रोडक्ट 15 आना चाहिए। तो ये 3 और 5 ही हैं, 3 5 15 एंड 5 माइनस 3 इज 2। ठीक है, तो यही 2 फैक्टर्स हो गए। क्योंकि मेरा मिडिल टर्म का साइन प्लस है, तो बड़े वाले फैक्टर का साइन मैं प्लस रखूंगी और छोटे वाले का माइनस, तो प्लस 5 माइनस 3। तो मैं मिडिल टर्म को कैसे लिख सकती हूँ? प्लस 5y माइनस 3y। तो चलो स्प्लिट कर देते हैं, 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5, y कॉमन निकाल लिया, बचा 3y प्लस 5, यहाँ माइनस 1 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये भी 3y प्लस 5 बचा। अब 3y प्लस 5 हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ y माइनस 1 बचा। अब मेरे 2 फैक्टर्स आ गए, ऑलरेडी मैंने एक 4k पहले निकाल ही रखा था, 2 ये आ गए, हो गए कितने? 3 फैक्टर्स, एक लेंथ हो गया, एक ब्रेड्थ हो गया और एक हाइट हो गया। सो दिस फिनिशेज योर टुडेज लेक्चर, थैंक यू। एंड अब हमारे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 14 आर लेफ्ट। उसके साथ साथ मैं आपको कल कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूंगी और देन उसके नेक्स्ट डे मैं आपको प्रैक्टिस असाइनमेंट दूंगी इस चैप्टर का। चिल्ड्रन, आई हैव वन रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मैथ्स डेली कीजिए। आई नो आपका बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, बट स्टिल आप चाहे थोड़ा करिए। मैं आपको बहुत सारा नहीं कराती हूँ एक दिन में, आपको सिर्फ मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चंस ही हैं जो मैं आपको खुद करने के लिए देती हूँ। आप थोड़ा करिए, लेकिन करिए ज़रूर, कोई भी दिन स्किप मत करिए प्लीज़। ओके, सो चिल्ड्रन, and all the best for your maths practice. Stay home, stay safe. Thank you.